हेलो नमस्कार सभी को एंड अ वेरी जोशफुल जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अंतिम पग। So today we have a very special guest with us, गौतम गिरी। एंड गौतम इज दैट वन गाय जिसने अपनी टीन एज में ही बस 7 SSB अटेम्प्ट्स दे दिए। एंड ही इज दैट वन गाय जिसने काफी सारे एसएसबी बोर्ड्स का खाना और पानी दोनों चखा है। सो ही इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट एसएसबी एंड लगभग लगभग सारी स्टेजेस उसने एसएसबी की देखी, लगभग क्या देखी है, सारी स्टेजेस देखी है। ही हैव बीन स्क्रीन्ड आउट, ही हैव बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट, ही हैव बीन रिकमेंडेड एंड मेडिकल्स, तो यस ही हैज सीन द मेडिकल्स एज वेल। उसके साथ साथ ही हैज क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन एज वेल। सो आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट all the aspects of SSB. So, Gautam, I welcome you on the Antipag and thank you so much for accepting our invitation and joining us. Thank you, Meg. It was my pleasure to, share my experience and my knowledge. So first of all, I would like to introduce myself to everyone. My name is Gautam Giri, and I natively belong from Bihar. And currently, I'm pursuing my graduation in English honors. I've given 7 SSB attempts and 4 NDA attempts of written. I cleared them twice, and I cleared my last attempt was in NDA 1 2023, in which I got recommended. I've been recommended twice, and yeah, so that's all. And I sometimes now mentor students or candidates for their SSB and written examination. So thank you, Gautam. And I also want to tell everyone that Gautam is an army brat. So Gautam, audience का एक जनरल सवाल आएगा, you know that being an army brat, why you chose and opted Air Force. So can you please tell us why you have opted Air Force? Yeah, so like even though native like from childhood I have been in army camp, my father and my grandfather they both have served in Corps of Army. My father is currently serving. My paternal uncle he is also in army, but the reason my preference was Air Force because my maternal uncle he is in Air Force. Currently, he is a master warrant officer. So when I was in seventh class, I went to his place. He was posted in Bareilly at that time. So he took me to his squadron, and we both he took me, my mother, and my sister as well. And there was a Sukhoi that was in hangar, and he offered us all of a seat. So at the moment when I sat there, so I felt like he yelling karna. It was the controller. The moment when I grabbed the controller, so it was very uh, memorable moment. I still remember it. So that is why I chose to become a fighter pilot, and my preference was Air Force. यस एब्सोल्युटली। एंड हमें पता नहीं होता है कब लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जो हमारा पाथ भी शायद कई बार बदल देते हैं और ऑप्शंस ऑप्शंस भी बदल देते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन आवर कंट्री जिनके साथ ऐसे काफी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। Okay, so now let us move ahead, Gautam. Now I'll come to your written part. You have cleared the NDA examination for 2 times, right? Yes. And NDA is conducted by UPSC. If anyone don't know, UPSC stands for Union Public Service Commission of India, and it is the same body जो civil services exam conduct करवाती है। तो clearing NDA is a big achievement, है ना? I according to me, क्योंकि उसमें आई थिंक 9 से 10 सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, देन यू हैव सोशल स्टडीज के चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंड देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। So first I will come upon the mathematics part. First of all, before coming to the mathematics part, Gautam, please tell about NDA, that NDA में मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का वेटेज लेता है अराउंड।
सो टोटली 1800 मार्क्स पे के ऊपर हमारी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। 900 मार्क्स आर गिवन फॉर एसएसबी, 900 फॉर रिटन। इन द फर्स्ट 900 विच इज़ फॉर रिटन, उसमें आपके 300 मार्क्स जस्ट फॉर मैथमेटिक्स, एंड द रिमेनिंग 600 आर फॉर जीएटी। सो इन मैथमेटिक्स आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 पर ईच करेक्ट आंसर, एंड 1/3 यानी -0.833 फॉर अ नेगेट, इट इज नेगेटिव मार्किंग। सो इफ यू so it's an OMR sheet base. So you don't have to write answer. You just have to fill the OMR sheet. So if you fill the wrong answer, you get the negative marking. And same goes for GAT. But the number of questions are 150. Per question you will get 4 marks per correct answer, and per wrong answer, your 1.33 marks will be deducted for any wrong answer. So, and for the both of the question, yeah, so they both are conducted differently. Like you first you'll have your mathematics exam on that day, and then after a break of 1.5 an hour, you'll have the GAT paper. So yeah, so that was all about NDA written examination. Now गौतम हम आते हैं एक मेजर सब्जेक्ट पे, दैट इज मैथमेटिक्स। जैसा कि आपने बताया कि मैथमेटिक्स इज ऑफ 300 मार्क्स, है ना। एंड बाय द टाइम द कंपटीशन हैज बीन इंक्रीज इन एनडीए, उसकी वजह से द थिंग विच हैज हैपेंड इज कि एनडीए में मैथ्स का जो पैटर्न काफी सालों से फॉलो आ रहा था, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक अब एडवांस हो गया, है ना। एनडीए मैथमेटिक्स इज गेटिंग इक्वलाइजिंग विथ द जेई मेंस मैथमेटिक्स, थोड़ा थोड़ा, नॉट दैट डीप बट यस, थोड़ा थोड़ा। So, how you prepared for mathematics, and what should be one's approach for this subject? सो अब हमने पहले नहीं बताया, लाइक आई फॉरगॉट इट, बट यहाँ पे सेक्शनल मार्किंग, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सो आउट ऑफ 300 यू शुड गेट 75, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज आपका चाहे कट ऑफ के से 100 मार्क्स ज़्यादा क्यों ना हो, बट यू हैवन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ इन ईच ऑफ द पेपर, आपको एसएसबी नहीं है, एसएसबी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। So for GAT it's 150, for maths it's 75. So when I was preparing, I had the same idea, and I had multiple exams to give. I had NDA, I had 12th boards, I had my JE examination, ISI examination, and only one subject was common among all of them. That was mathematics. So I gave most of the time to the mathematics part. Firstly, I covered all of the lectures. Thereafter, I solved the questions as per examination base, like if it's NCRT, so I started with NCRT, then I gave NDA PYQs, then I gave JE PYQs as well, and then ISI's PYQs, uh, and after that I solved mock, solved mock papers and mock questions, and that's all what I did for mathematics. And whatever, whoever, if there is any topic which I don't remember or I can't solve questions, so I go visit the lecture again, saw about the lecture, saw about that topic. उसके बाद I gave more questions, similar questions, and the PYQs. That's all I prepared. Okay, so this was all about mathematics. Now, Gautam, I want to ask how important is English for the people? क्योंकि there are people who belongs from rural background, government schools, है ना, जिनकी English is not that good. And English in GAT covers 200 marks, 50 questions. And is it English important for SSB as well? So with both perspectives, what are your views on English? So yeah, English is very important because you will get 200 marks, and that's very easy if you will think about other subjects. You don't have to worry about it that much if you have control over English. But especially for, as you mentioned, there are, so many candidate students who come from rural background. They don't have much knowledge of English, or they are not confident in it while speaking or even writing. They belong to government schools. So yeah, of course, they should prepare it. Like I didn't, cause I had control over it. I thought that not only I thought, but yeah, my English was at very good level. So I didn't think कि मेरे को extra effort डालना चाहिए in English. But for those candidates,
Yes, they should give time to English. English is very important not only for your written examination but also for your SSB as well. क्योंकि the preferred language, of course, somehow even during interview, GD and all those tasks, you can talk in Hindi, but only for a few times, because the preferred language used in SSB is also English. Therefore, it is very important that English, if you don't have control over English, one should prepare for it. And you can easily prepare agar if you give attention to English, till 12th class, you score more than 80, 85, then you'll be able to get more than 35 mark like questions correct. But if you want 40, 45 plus correct questions, then yes, like if I remember one time I got more almost 43 to 44 questions correct, and the second time I cleared that time also around 42 to 44. So I used to score very well in English because I had control over it. So if you want to score like that, you should give a bit of time for English as well, knowing the rules or solving the PYQs at least. So once you solve the PYQs, you'll get the idea how what kind of questions you are getting, how much time you are taking to solve these questions, so you can prepare for it. Okay. And let us cover the remaining part as well. How you prepared for general science, Gautam? Because there are many subjects in it. Especially social science is that one subject जो बहुत ज़्यादा vast है, बहुत ज़्यादा vast है ना? And you have limited time as you are the student of 11th 12th. आपके boards भी हैं 12th में. You have to focus on your boards है ना? And if you are from non-medical background, you don't get that time. So, how much you covered from this social studies part, and what was your strategy to cope up with GAT? So for GAT, first of all, I will talk about the science part. So for science, as I was from non-medical background, it was not that key. It was easy, but yeah, I have done like I studied those things right in my 9th, 10th, 11th, and 12th. So the only thing which I needed to do was to revise them. So I had these notes. These were, notes from Telegram as well, and all those topic-wise notes and lectures. So I used to see you before exam, like if it's like half of a month or a month. So I'll revise those notes before going to sleep every day. Okay, before going to sleep, and I will revise them for the uh, harder or the part in which you have to put more effort is the social sciences. So social science and GK, because it's very vast. So for that there were subjects which I never covered. Polity, like I covered the polity, but only first five parts of constitution till fundamental duties. आई ओनली डिड टिल फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि रिट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, राइट? दो तीन चार क्वेश्चन ही आते हैं. सो आई ओनली स्टडीड टिल द पार्ट वेयर आई फेल्ट की इज नेसेसरी. उससे ज़्यादा आई नेवर स्टडीड. इकोनॉमिक्स आई नेवर स्टडीड. एंड आफ्टर दैट फॉर this geography, I covered the whole geography, world geography and physical geography and all. After that, for the history, I covered the modern history, I covered medieval and ancient. I didn't cover world history. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much, Gautam. And one thing which I want to add in it that अगर आप PCM background से belong करते हो, तो you should not mess up with your physics and chemistry part especially. Because the thing is, what I did के I thought कि ठीक है PCM है 9 10th का physics chemistry आएगा and वो तो I'll see it at the exam time and didn't prepared for physics chemistry and even मैंने revise भी नहीं किया था उसके लिए. तो व्हेन आई वेंट फॉर द एग्जाम, अब चीज क्या होती है कि भले कोई भी चीज हो, आपको कितनी भी अच्छी आती हो, यू नीड अ रिवीजन फॉर इट, है ना? Yes. तो बिकॉज देयर यू कैन नॉट टेक रिस्क ना. आपको दो ऑप्शन भी ठीक लगेंगे हो सकता है, बट वहां तो नेगेटिव मार्किंग है. एंड जीएटी में स्पेशली क्या होता है कि 150 क्वेश्चन है. मैथ्स बच्चों का अच्छा नहीं जाता है, बच्चे सोचते हैं कि वी विल कवर अप इन जीएटी. एंड जीएटी में फिर आप ग्रीडी हो जाते हो, लालची हो जाते हो. आपको लगता है चलो ठीक है, ये नहीं तो ये तो हो सकता है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाने लगते हो.
बट जीएटी और यूपीएससी का जीएटी आपको वहीं पर कंपटीशन से फिल्टर आउट करता है। उसके चार ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको लगेगा कि हाँ नियरली नियरली ये अच्छा है, और नियरली नियरली के मामले में यू हिट दैट क्वेश्चन, और कभी कभी आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो माय सजेशन फॉर ऑल दोस पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पीसीबी स्टूडेंट्स को यस ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक ऑन दैट मैथमेटिक्स पार्ट एक्स्ट्रा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री कैन बी योर स्ट्रॉन्ग पार्ट। आप 40 क्वेश्चन करके आ सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गौतम। Physics, chemistry, of course, I used to solve around 40 to 40, 44, 43 questions. So, Gautam, let us come to the SSB part now. Mm. And I want to know about your experience for your first SSB. Okay. So, in my first SSB, it was in September of 2022. And उसी के पहले I gave my third written attempt. It was in 4 September और मेरी SSB थी 12 September को. So, it was in 4 FSB Varanasi. And so I was actually pretty confident about my uh, first attempt. Not pretty confident, I will say overconfident. एंड जैसे ही मैं उधर गया तो एक तो हमारी रिपोर्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी. इट वाज मोर देन 300 आई रिमेम्बर, क्योंकि इट वाज लास्ट लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग. तो सबसे पहले वही, या लास्ट डे ऑफ द बैच, तो वो सबसे पहले वही भरा था. अ, और मैंने भी, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम था तब तक हमारे पास, तो मैंने भी वही वाली डेट सेलेक्ट की थी, जस्ट लाइक अदर कैंडिडेट्स. उसके बाद हमारा वो ईयर हुआ. I remember OAR was normal level because I performed I practiced OAR a lot before that. Then there was PPDT. So it was somewhat of library थी, क्योंकि हेजी होती है पिक्चर, बट समवॉट नियर लाइब्रेरी. उधर पूरा ग्रुप बैठा है. They have that laptop or books as well on their with them, and that was the picture. So I wrote of group study, right? And हाँ, तो ड्यूरिंग नरेशन सबने नरेट किया, आई नरेटेड इट वेल. ओके, मैं रुका नहीं. लाइक हमारे ग्रुप में काफ़ी तो रुके भी, बोला क्योंकि हम सभी फ्रेशर थे. और मेरा फर्स्ट, हमारा फर्स्ट ही ग्रुप था. तो सबसे पहले पीपीडीटी हमारा ही होना था, ग्रुप डिस्कशन और नरेशन. तो हम सेमी सर्कल वे में बैठे. एंड तो 1 to 1 नरेशन स्टार्ट हुआ. सो वी ऑल स्टार्टेड नरेटिंग आवर स्टोरीज. मेरी बारी आई. So I had also narrated. I narrated the story pretty well. Then discussion was there. So I participated in discussion as very very well. I'd say सभी का participation था, but क्योंकि अब you know a lot of number of candidates nowadays come from coaching. They take guidance, then they come to SSB. So the same thing happened there. My group was very active. Almost 15 में से 10 to 12 candidates बोल ही रहे थे. So as usual, they divided the group in two half groups. So one half group was divided, which was mine. So मेरे half group ने थीम ली वर्क का, उनका स्टार्टअप का, राइट. और मेरी थी लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी की. एंड उसमें भी ग्रुप स्टडी इन द सेंस की, मतलब दे ऑल आर स्टडिंग, बट उसमें मेन कैरेक्टर भी है मेरा. एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दैट इज मच आई रिमेम्बर. दूसरे जो हाफ ग्रुप थे उन्होंने मेरी वाली थीम को अपना थीम बनाया था. तो अब दोनों हाफ ग्रुप्स ने थीम डिसाइड कर ली थी, बट द इशू वाज कि जैसे उन्होंने बोला कि कम ऑन कॉमन थीम, लास्ट 30 सेकेंड्स थे, कोई कॉमन थीम बने नहीं, बस चिल्लाते रहे सब. तो उन्होंने अब बोला हु विल गिव द कॉमन स्टोरी. सब शांत है, सब शांत है, किसी ने कुछ बोला नहीं. ही आस्क्ड अगेन. सो आई थॉट कि एट दैट पॉइंट आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी. तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बट आई I raised my hand and I asked if all group members agree. I want to give a common story. So in that time, I was thinking कि I will, somehow merge both of the stories, कि वो group study भी कर. But at the same time, the group study is about a
project they all are involved in a वर्क प्लेस। तो यहाँ पे मर्ज कर दूंगा मैं दोनों चीजों को, तो हाफ ग्रुप की भी स्टोरी आ गई, मेरे ग्रुप की भी स्टोरी आ गई। बट वो बोलने में मेरी फट गई खड़े होके, सामने वैसे ऐसे थे। और मैंने जितने में इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया, ही सेड थैंक यू, बैठ गया। ऑलमोस्ट आई गॉट टू, मतलब मेरे को पता लग गया था रिजल्ट क्या ही होगा, क्योंकि एट द टाइम व्हेन आई टुक द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू नो अहेड। तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माय साइड, और तब भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, तो दैट इज समवॉट प्रॉब्लमेटिक। तो आई गॉट स्क्रीन आउट देयर। Okay, I'd like. I want to tell the viewers that Gotham is running a very wonderful organization known as Mavericks, and he do give guidance there. Gotham, before going ahead, please tell something about Mavericks. So Mavericks is a Telegram channel. It's not only mine; it's our whole group. We have around 10 to 15 admins there. It is founded by one of my friends and a candidate whom I guided, and he got recommended, Sachin Jangi. So he got recommended in NDA 150, right? Okay, Even though he got medically out. So in our group, we do daily sessions. Daily practice sessions are there. Either sometimes it's on GD, GTO, any task. Okay, lecture is. Not only that, on monthly or quarterly basis, we have this workshops which we take for free, right? So in these workshop, it is 5 to 6 days work weeks, 5 to 6 days workshop, where many of our recommended candidates, including me, Sachin, and 3 4 more candidates, we guide candidates live on our sessions, and in depth we talk about psychology tests, how to perform, and each day's each day one session will be held for 2 to 3 hours for each of the tasks. great, great. It is such a great initiative, Gotham. And Yeah. there is a phrase in English कि too many cooks ruins the dish. तो आज के टाइम पे गाइडेंस देने वाले बहुत लोग हैं, बट इवेंचुअली एट द एंड यू नीड द राइट गाइडेंस, एंड यू शुड गो एट दोस प्लेसेस जहाँ पे आपको राइट गाइडेंस मिले. So I'll put down the link of his Telegram channel. There you can connect with him. And अभी जिसके भी SSBs lined up हो, they can brush up their, skills, their assessments. It will really gonna help you a lot. So moving ahead, Gautam, now I'll come upon in your SSB in which you got screened in. So what was that and which entry was it? So it was TS 49, तो जलंधर नया नया बोर्ड बना था तब, राइट? हमारा थर्ड बैच था जलंधर में, आई रिमेम्बर। तो इट वाज वेरी वेरी लर्निंग एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैड देयर, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आउट। but I learned so many things, क्योंकि even out of those like 67 candidates were there in reporting, we 33 got screened in, right? So 50% ratio, so that was also lucky, but I performed also there. And then I got screened in. My chest number was 11। तो सबसे पहले तो उन 33 में से आई टेल यू द रिजल्ट। उस मोमेंट पे ही 8 गॉट रिकमेंडेड, लाइक आफ्टर 5 days, राइट? उसके बाद आउट ऑफ 8 ऑफ लाइक बाकी 33 में से वी आर 8 कैंडिडेट्स जो अपने बाकी अटेम्प्ट्स में रिकमेंड हुए। तो आउट ऑफ Okay, 30, 16 हैव बीन रिकमेंडेड टिल नाउ, राइट? great. इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम मी, क्योंकि वो जो उधर पहले तो 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, सो आई टॉक टू देम, आई हैड वेरी मच डीप कॉन्वर्सेशन विद देम, एंड हाउ कैन आई improve, and that eventually led me to recommendation. I'll tell you, that was one of the stepping stones, first step towards recommendation, my first conference. That cause जब मेरा I'll tell you my experience in psychology कि I was only able to write 40 watts, not even 40 watts, and उनमें भी एक पेज का तो मेरा पूरा सीक्वेंस ही यू नो गलत हो गया था, क्योंकि आई थॉट कि मैंने 2 वर्ड छोड़े, मैंने छोड़ा 1 वर्ड था, तो सीक्वेंस पूरा गलत।
मैं तभी समझ गया हाउ बिग फक अप दिस इज। उसके बाद मैंने इन इंटरव्यू, इंटरव्यू वाज गोइंग नॉर्मल, ही वाज नॉट टू हार्श ऑन मी। आई वाज आल्सो बिट नर्वस एज वेल, क्योंकि फर्स्ट ऐसा नहीं था, आई हैवंट बीन इन कांटेक्ट विद ऑफिसर लाइक फॉर गाइड, डे टू डे गाइडेंस। आई यूज्ड टू गो टू माय ओसी ऑफ माय फादर्स यूनिट एंड even see। पर जब आप जानते हो कि आपका असेसमेंट हो रहा है, यू आर इन रियल लाइफ असेसमेंट, दैट इज वेरी मच डिफरेंट। तो Yes. एंड उसी वक्त उसने अचानक से एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा कि योर फादर हैज बीन इन कांटेक्ट विद सो मेनी ऑफिसर्स एंड ऑल, व्हाट डिफरेंस डज इट फाइंड इन यू एंड दोज ऑफिसर्स। तो वो मैं जवाब ही नहीं दे पाया। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डिड वेरी रॉन्ग। जीटीओ में मैं बस लोड के पीछे पड़ गया था। आई वाज लाइक कि तुम आइडिया आए ना आए, लोड तो तेरा भाई उठा के जाएगा। आई वाज लाइक दैट कि लोड तो मैं ही लेके जाऊंगा, पार मैं ही कराऊंगा लोड को। एंड तो आई वाज नॉट गिविंग मच आइडियाज इन जीटीओ, क्योंकि मेरे को तो लगा था हेल्पफुल बनना है, सो आई विल टेक द लोड। ठीक है, वो कराऊंगा। मैंने लेक्चर है, आई विल टेल यू वन वेरी फनी स्टोरी कि हम सबका लेक्चर था। तो हम 8 लोग थे उस ग्रुप में। सो माय चेस्ट नंबर वाज 11, आई वाज सेकंड इन द रो। सबसे पहले चेस्ट नंबर 10 का हुआ, तो ही गेव लेक्चर, इवन आई गेव लेक्चर ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, आई रिमेम्बर। Okay. तो उसके बाद फिर एक एक करके सब दे रहे थे। तो चेस्ट नंबर जो 14 था, ही जस्ट केम हेयर फॉर फन। ही नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी, नथिंग, जस्ट प्रिपेयर फॉर जेई। आ गया, स्क्रीनिंग भी हो गया Uh-huh. रेशियो। तो उसकी लेक्चर की बारी आई। तो फर्स्ट मिनट ही वाज सेइंग प्रीटी वेल, आई से मतलब नॉर्मली। फिर अचानक से रुक गया। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, रुक सकते हैं भाई। अच्छा बोलेगा कल, ही वुड बी रिकलेक्टिंग थॉट्स एंड आइडियाज, देन ही विल स्पीक। 1 मिनट हो Uh-huh. गया अभी तक कुछ बोला नहीं। अचानक से बोलता है थैंक यू। ठीक है, अब तो मेरी जो हंसी आई, वो हंसी मेरी मतलब चेस नंबर 15 16 17 का, उन तीनों का लेक्चर खत्म हो गया। वो लेक्चर देते वक्त मेरे को देख के हंस रहे हैं, पर मेरी हंसी रुक नहीं रही। चेस नंबर 10 मुझे देख के हंस रहा है, तो उसने भी शक्ल ये कर ली, पीछे जीते बैठा, और मैं बेशर्मों की तरह हाथ यूं रख के कहीं दूसरी तरफ देख के पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी हंसी रुक जाए, पर उस वक्त मेरी हंसी रुकी नहीं। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हिम, बट एट द सेम मोमेंट मैं आई कुडंट कंट्रोल इट। मैं कुछ मेरे हाथ में नहीं था वो। मैंने जैसे तैसे रोका। फिर जैसे ही उसका खत्म हुआ, फिर जीटीओ की आवाज आई। तब भी आई एम जस्ट कंट्रोलिंग की मतलब उसे दिखे ना मैं हंस रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको लगे कि मैं बस हंस नहीं रहा हूँ। तो दैट हैपेंड। सो समवट आई एट द वेरी ईच लेवल आई मेड वेरी मिस्टेक्स। तो उसी वजह से वन Disclaimer. It is a या disclaimer, guys. Don't do this. in reality don't do this. Have control on your emotions, otherwise it can hinder your performance. You should have control in your emotions, जो मेरे वक्त उस वक्त नहीं थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ। तो इसीलिए आई हैव blundered at many levels during that SSB, but I learned from each of them कि अगर मैंने गलती की है तो इसको सही कैसे करना है। I saw those like previously recommended candidates. I saw the performance of the candidates who just got recommended. So that was one of the very insightful experience from me. Great, great. So it is what happened. Like when you go through with so many SSB, आपको पता होता है कि what you should not do. Yeah. आपको ये चीज पता होती है एंड आपको रहना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है, आपको इसका भी एक अच्छा आइडिया रहता है। तो एन एक्सपीरियंस पर्सन कहीं ना कहीं उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है, नो डाउट। एंड यस, दीज आर मेमोरेबल इंसिडेंट्स। मजा आता है एसएसबी में 5 दिन, पता नहीं लगता है कैसे कट जाते हैं। एंड Yeah. कभी कभी बीच बीच में फील ही नहीं होता है कि आप असेसमेंट के लिए आए। तो इट वाज लाइक एसएसबी इज सच अ वंडरफुल थिंग और सबको ट्राई करनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट के इवेंचुअली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडी एग्जामिनेशन, आई वुड सजेस्ट जो भी लोग पीसीएम बैकग्राउंड से आए हैं दे शुड गिव जेई। उनको जेई देना चाहिए, जिससे इफ
उनका लक अच्छा हुआ, उनका एग्जाम अच्छा गया, सो दे कुड हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रैबिंग अप टीएस और नेवी टेक एंट्रीज। मेरे साथ भी वही हुआ, आई हैवंट क्लियर्ड एग्जामिनेशन, तो मेरे को नेवी टेक के एसएसबीज मिले। सो मूविंग अहेड, गौतम, नाउ आई विल कम अपॉन योर फर्स्ट रिकमेंडेड वाली एसएसबी, वन एफएसबी देहरादून। सो एफएसबी में व्हाट हैपेंस, एफएसबी का थोड़ा प्रोसेसिंग अलग चलती है, दैट गौतम विल टेल यू। एंड गौतम, लेट्स स्टार्ट अबाउट योर एक्सपीरियंस एट एफएसबी एंड how you picked up things different from your previous SSB. Psychology में क्या changes किए, CTO में क्या changes किए, all those things, please. So as soon as I gave my return, right? Even though it was doubtful, but I was preparing very well for my SSB. I was alone in my quarter. मेरे parents गांव गए थे for 1 month, 1.5 month. So at that time I was really hard code. I prepared for it really hard. So सबसे पहले the my writing speed because VAT मैं बहुत कम लिख पाया. SRT is only 30. So I started improving it. I started improving my stories to how to write it. ठीक है. क्योंकि at that point मेरे को ये पता लग गया था कि स्टोरीज कैसी लिखनी है. After talking to recommended previously recommended candidates, watching on YouTube, and even from books, right? So I started framing my stories. मैंने खूब सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट की मैंने खूब प्रैक्टिस की. उसके बाद फॉर इंटरव्यू आई रोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड देम एज वेल. ठीक है, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं विच आई कैन रिमेम्बर, लाइक शॉर्ट शॉर्ट सी आई क्यूज हो गए, पी वाई क्यूज से रिलेटेड, राइट? तो उसके सारे आंसर्स लिखना. एंड देन सॉरी, तो और उसके बाद फिर जीटीओ पे भी टॉपिक्स का जैसे लेक्चर टॉपिक्स के लिए आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर एवरी डे. आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर एज वेल एज आई वॉज वॉचिंग दोज एडिटोरियल्स, video and editorials every day, and I was noting down my in notes कि आज के न्यूज़ में ये आया, these are the pointers which gave me a lot of advantage over others, whether during my coaching or during my SSB, when I appeared for SSB, whether it was in Dehradun or even in Bhopal. I'll tell you a lot it helped me. क्योंकि when I was writing down all of those notes each day, मतलब 2 पेज का होता था ऑन एन एवरेज. न्यूज़पेपर का एनालिसिस, एडिटोरियल्स का एनालिसिस, उसमें 6 से 7 न्यूज़ कवर होती थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स. तो मेरे को एक बार जब वो दिमाग में, एक तो सबसे पहले मैंने वो पढ़ा, फिर आई यूज टू रिवाइज देम एज वेल. रात को उसको 2 बार रिवाइज करना है, और फिर हफ्ते में संडे को पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है, और महीने में एक दिन संडे को, लास्ट संडे होगा या फिर लास्ट डे को, पूरे महीने का गो थ्रू करना है. सो आफ्टर रिवाइजिंग ऑल ऑफ दूज थिंग्स, वो मेरे दिमाग में इवेंचुअली बैठ जाती थी. सारे पॉइंट्स नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मेरे दिमाग में रहते थे. तो एट द एग्जैक्ट पॉइंट जब भी मेरे को कुछ भी बोलना हो, चाहे वो जीडी में हो या लेक्चर में हो, आई वॉज एबल टू रिकलेक्ट. तो Mhm. सबसे पहले आई वाज डूइंग दीज थिंग्स विच वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और फिर मैं रिपीटर भी था. तो व्हेन आई वेंट फॉर द कोचिंग, दिस टाइम आई वेंट फॉर द कोचिंग इन एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी एट अर्पित चौधरी इन दिल्ली. तो दीज गेव मी मच मोर अपर हैंड देन ऑन अदर्स, क्योंकि बाकी सब जो थे वो एक दो ही रिपीटर थे, मेरे अलावा एक ही रिपीटर था. उसके अलावा सब या तो फ्रेशर या स्क्रीन आउट थे. तो उधर जाके आई वाज एबल टू परफॉर्म मच मोर बेटर. सेम हैपेंड विद ग्रुप डिस्कशंस इन जीटीओस, क्योंकि उन पॉइंट्स पे, उन टॉपिक्स पे बच्चों को उतनी नॉलेज होती नहीं थी. एंड आई वाज, अब जो भी पॉइंट्स आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं. फॉर द फास्ट 2-3 months आई वाज प्रिपेयरिंग माय होल एडिटोरियल्स एंड आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर्स. तो उन सब के ऊपर पॉइंट्स मेरे होते थे. तो आई यूज टू हैव सो मेनी पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ द लीड्स, कि मैं एक लीड पे बोल के दूसरे लीड पे आई यूज टू सपोर्ट अदर लीड एज वेल लेटर. बट पहले सो या देर इज वन थिंग कि लोग कहते हैं कि जीडी में आपको एक लीड पे बोलनी चाहिए या मल्टीपल पे. माई ओपिनियन दैट इज कि फर्स्ट यू बी स्टडी ऑन योर वन लीड,
आप अपने जिस लीड पे आप हो आप उसको फुली डिफेंड करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आपके पास अपने लीड पे पॉइंट खत्म हो गए, दूसरे लीड पे पॉइंट्स आ रहे, देन यू कैन गो टू अनदर पॉइंट टू शो योर नॉलेज। राइट, अदरवाइज आप पे अगर पॉइंट्स अपने ही लीड पे हैं तो आप बोलते जाओ ना जब तक आपके पॉइंट्स खत्म नहीं होते। राइट। हम्म। तो आई यूज टू डू द सेम, एंड so I got a very pretty good experience with my coaching day, and it helped me nurture my personality, and I improved my personality in many ways. So when I went for the SSB in Dehradun, I was confident at that time. So I got screened in. Thereafter, our psychology test. सबसे पहले तो documentation हुई। तो AFSBs में आपका काफ़ी हेक्टिक रहता है डे वन। फर्स्ट डे ही आपका स्क्रीनिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद ही आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है। सो दे गिव अस 2 3 hour to 2 hours to relax, then there was time for psychology test. But in the end it was just a like above average tat I performed there। क्योंकि एक दो स्टोरीज के अलावा ऑल ऑफ द स्टोरीज वर वेरी गुड इन थीम। मेरे को टाइम लग रहा था सोचने में, लिखने में उतना टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने मोर देन 15 डोजेस कंप्लीट कर दिए थे। ओके। 15 to 20 डोजेस। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यू शुड हैव दैट इन माइंड कि आप कम से कम 10 to 15 डोजेस कर रहे हो। क्योंकि उसके बाद आई वॉज एबल टू डू 60 वैट्स ऑफ हाई लेवल। एक भी वैट मैंने गलत लेवल मतलब नॉट इन नेगेटिव, नॉट इन अ प्रीचिंग वे, आई वॉज एबल टू राइट ऑल दो 60 वैट्स। I was able to write 45 plus SRTs, right? That too in मैं whenever I write SRT मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ कि उसको बस एक लाइन में खत्म कर दिया। I write by completing each points, like never leaving a problem. So अभी मान लो what many people do कि अगर वो SRT आते, सो SRT में आपका सिचुएशन है, यू आर गोइंग टू जॉब, यू सॉ एन एक्सीडेंट, यू, तो उधर वो बस हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, मेड फर्स्ट एड देते हैं, बट योर मेन वर्क वाज टू गो टू योर जॉब एज वेल, यू आर गोइंग टू योर वर्क, सो you have to complete all of those problems. So you gave him first aid, called ambulance, admitted him in hospital, then went to work, right? So Gautam, like I want to ask, okay, in psychology, you said that you you know practiced a lot, then write different story. So what kind of stories were those? उसमें what you changed, and if you can give a short example of any of the story. Yeah. So themes, the level of themes on which I was writing earlier were of a very average level, या फिर we can say individualistic level, very much. But later I was not only writing on an individual level, right? Hmm. But I was actually more focused to the relevant part. Relevant part Oh, by that I mean कि मतलब what is much more relevant to the picture. So if it okay. is relevant to writing a individualistic story, I'll write that. If it is much more relevant to write a group or to help a group community or even a society or social level theme, so I'll write that. Otherwise, if it's looking like an adventurous thing, I'll write on that, or organizing things. So there were so many themes which I divided. Right. So there are basically 5 to 6 themes. Either you can write on your securing feature or the individualistic level, whether it can be about your uh, preparation about any exam, NDA, JE, or it can be either about your job, project, वगैरह, college and all academics, everything. This will come in your securing feature written on individualistic level. Then there is a social thing. Social में either you are doing some services वाला work, services like your awareness campaigns, right? Awareness about like what do we say, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, या फिर अवेयरनेस Hmm. अबाउट एजुकेशन, एआई एंड सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करवा रहे हो, स्कूल्स का, डैम्स का, पार्किंग लॉट्स का कंस्ट्रक्शन, नहीं तो कॉलेजेस का, लाइब्रेरीज का, राइट? तो देर वर अ लॉट ऑफ थीम्स इन माई माइंड, एंड आई रोट डाउन इन दैट कॉपी एज वेल कि आप क्या क्या थीम्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि व्हेन आई रोट डाउन दैट ऑन कॉपी,
तो मैं जैसी पिक्चर देखता था, आई यूज टू गेट द आइडिया व्हाट काइंड ऑफ थीम ऑन विच आई विल बी राइटिंग। मेरे को 3 से 4 थीम्स पता लग ध्यान आ जाती थी। देन आई यूज टू डिसाइड कि व्हाट विल बी द बेस्ट। सो इट जस्ट यूज टू टेक मी 5 to 10 seconds। सो दैट हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग माई साइकोलॉजी टेस्ट की उन 6 थीम्स, 6 सब टॉपिक्स में से मैं कौन सा डिसाइड करना है, दैट्स ऑन माई माइंड। अदरवाइज आई यूज टू गेट ऑन व्हाट थीम आई विल राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, प्रिपरेशन ऑफ एनडीए अगर यही ले लेते हैं, तो आई जस्ट, उसका जो मेन वर्क पार्ट होता था, द एक्शन पार्ट, वो गायब रहता था, ज्यादा नहीं आते थे एक्शन उसमें। उसमें बस ये होता था, ही हार्ड वर्कली एंड diligently वर्क स्टडीड, बट कैसे, हाउ he put his all of the hard work, right? How he put his efforts, like giving mocks, like preparing through lectures, making notes, right? Then solving PYQs. So ये डिटेलमेंट आई जब मैंने अपनी स्टोरीज के ऊपर काम करना शुरू किया, एंड कोचिंग भी गया, एंड आई रिफाइंड माई वर्क। So all of this detailment came from that part, improved. ग्रेट। सो इफ आई समराइज एवरीथिंग, तो आपको पहले यू हैव टू नो कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, एंड देन Yes. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज द बेसिक थिंग you have to do. And And whatever जो एक्शन, mistake you make while practicing, you rectify it. यस, एंड जो एक्शंस की चीज बोली स्टोरीज में, कैची एक्शंस डालने की, तो कहानी उसी से बनती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोरी। अनलेस तो फिर वो किससे ही रह जाता है। तो Yeah. इट इज वेरी ऑब्जर्वेशनल थिंग यू सेड पतम। एंड जीटीओ का भी एज गौतम टोल्ड कि and जब तक आपके पास पॉइंट्स हैं यू शुड कंटिन्यू, एंड दैट इज हाउ यू कैन परफॉर्म। फिर हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी मैंने 5 से 10 कंप्लीट कर लिए थे। एंड देर आर 2 ways टू राइट इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। या तो एक आप बॉक्स बना लो, या फिर एक नॉर्मल वे जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई रोट डाउन दैट इन देहरादून, और मैंने भोपाल में जब लिखा तो मैंने बॉक्स वाला लिखा। Okay, ओके। so in this way, there is GPARTS. That first is G is group. आपने ग्रुप के वे में डिवाइड किया। देन P प्लानिंग पाथ, एंड R is for route, P is प्लानिंग। तो इट इज डिवाइडेड इन अ वे कि आप बस थोड़े थोड़े एक्शंस लिखो, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ रहा है बॉक्स बनाने के बाद। प्रायोरिटी वाइज आपने पूरी सॉल्व कर दी, एंड साइमल्टेनियसली आपका पूरा बॉक्स में आपने पूरा इश्यू सॉल्व कर दिया, तो वो 5 मिनट के अंदर भी आपका खत्म हो जाता है पूरा जीपीई। क्योंकि मेरा जलंधर में जीपी भी नहीं कंप्लीट हो पाया था, मैंने जस्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, थर्ड सॉल्व कर रहा था, उतने में ही चला गया था। तो दैट बॉक्स वाला वे इज फास्टर, बट इट्स अपॉन व्हाट यू वांट टू राइट एंड हाउ यू वांट टू राइट। तो So you just write up the actions in that box wala format. सो आई विल टेल यू, वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, कि मतलब सबसे पहले हमने कितना ग्रुप डिवाइड किया, मान लो 4 ग्रुप डिवाइड किए, तो 1 2 3 4 हो गया नंबर। पहले ग्रुप में कितने पर्सन है। देन उनके उसके बाद पी प्रायोरिटाइजेशन, सबसे मतलब प्रायोरिटी इस कौन सी है। देन आर इज फॉर रूट। देन ए फॉर एक्शंस, तो आपने क्या क्या एक्शन किया, कहाँ से कहाँ गए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर आएगा टी, टाइम, एंड देन स्पीड, राइट। एंड फिर देर विल बी अ पार्ट ए फॉर अनदर पार्ट फॉर एजम्पशंस। तो आपने वो बॉक्स में लिखा, बट आपने वो बॉक्स में ही जैसे ही बनाया, वो पूरा नीटली आपका हो जाता है। आई विल शे यू द पिक्चर एज वेल, ताकि आप दिखा पाओ वीडियो में। एंड उसके बाद फिर आप लास्ट में बस ये लिख दोगे, द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ देम विल मीट एट दैट टाइम, राइट। Okay. हाँ, तो इट इज अ वेरी इजियर एंड कन्वीनियंट वे। और जीटीओ भी जो है बेचारा, वो कितने ही आपके जीपी के पेजेस भरेगा, वो पहले ही आप लोगों से माथा खराब करके रोज का उसका काम हो रखा है। ठीक है, रोज 10 15 बच्चों को असेस करे, उसके बाद फिर उनका वो पढ़े घर जाके, तो उसको भी थोड़ा ईज आएगा, उसको भी थोड़ा आराम आएगा, एंड इट इज अ बिट डिफरेंट वे। तो उसका भी आप यू विल ग्रैब दैट अटेंशन फ्रॉम हिम। तो एंड जब मैंने भोपाल में उस वे में लिखा था, तो जो जीटीओ था, ही ऑल्सो अपलॉडेड माई जीपी सॉल्यूशन। Okay. तो
या एंड वो भी मेरे को मेरे एक जीटीओ सर हैं, कोचिंग में ही मिले थे। सो हाँ। उन्होंने बताया, तो इट वाज आल्सो अ वेरी एंड फिर हमारे कॉन्फ्रेंस डे आता है, सो आई वेंट फॉर द कॉन लाइक आफ्टर लंच कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा, क्योंकि हम हमारा लास्ट ग्रुप था होल बैच का, रिपीटर्स का। तो मेरा काफ़ी लंबा चला, सबसे पहले तो वेटिंग में ही काफ़ी था। फिर वेटिंग हुई, मैं गया अंदर। मैंने जैसे ही बोला, ग्रीट ही किया था मैंने, और सामने मैंने देखा कि भयंकर ये तो वही है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है, जो सामने बैठा है प्रेसिडेंट। उतने में ही उसके बगल वाला एक बंदा बोलता है सीधा, गुड आफ्टरनून। मैंने गुड आफ्टरनून बोला, उसने ग्रीटिंग हाँ। तक सुनी नहीं, क्री नहीं, वो बोलता योर इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, क्योंकि मैंने पीआईक्यू में उसको डाल रखा था। तो ही वाज ओके। लाइक, सो आई सेड यस। तो हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? अब लकीली मैंने कल रात ही एवेंजर्स एंड गेम देखी पूरे दोस्तों के साथ उधर कॉमन हाँ। एरिया में। तो आई हाँ। सेड आयरन मैन। हाँ। अदरवाइज इट वाज लाइक इट वुड हैव बीन वेरी हार्ड क्वेश्चन अगर मैं वो मूवी नहीं देखता तो, क्योंकि मेरे को सोचना पड़ता। बट एट द सेम हाँ। स्पॉट आई सेड, so he was like कि how do you relate with him? So I said sir he हाँ। is confident of his abilities, I am also confident of my abilities। इतने में ही पूरा पैनल हंसने लगा, और मेरी उधर हाँ। फटी पड़ी है कि मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है इंडिया का, और तुम सब हंस रहे हो। बगल वाली साइकोलॉजिस्ट लिखते लिखते हंस रही है, और मैं कि हंस क्यों रहा हूँ, मेरे को क्या पता, क्योंकि देवर चेकिंग माई कॉन्फिडेंस। एंड मैंने हाँ, वो राइट। ही दे दिया। एंड आई एम लाइक, अब मेरे को तो तब समझ नहीं आ रहा, वो हंस रहा है, और मैं कि और मेरी इधर फटी पड़ी, मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ही इज इंटेलिजेंट एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज इंटेलिजेंट। तो बोलता ठीक है। फिर उसके बाद ही सेड हाउ डू यू नॉट रिलेट? मैं कि सर हाँ। ही इज नॉट डिसिप्लिन्ड, आई कंसीडर माई सेल्फ एज डिसिप्लिन्ड। मैंने ये हाँ। बोल दिया। आई वॉज लाइक कि आई वोंट शो माई नेगेटिव पॉइंट। फिर हाँ। व्हाट डू यू एस्पायर ऑफ हिम, व्हाट डू यू वांट टू गेट फ्रॉम हिम? कि सर ही हैज वेरी ग्रेट सूट्स व्हिच एनीबॉडी वुड हाँ। लाइक टू हैव, एंड ही लिव्स अ लैविश लाइफ। अंधा पैसा उस पे, तो आई लाइक टू हैव दैट एज वेल। सो इज लाइक ओके जाओ। देन रिजल्ट्स अनाउंस हुए। हम टोटल 11, वी 11 वर रिकमेंडेड आउट ऑफ 50, 556। You really had a very great journey, या and I want to tell the viewers के हर स्टोरी के पीछे एक बैक स्टोरी होती ही होती है। इट वाज नॉट लाइक के गौतम जस्ट वेंट टू कोचिंग या जस्ट वेंट टू एसएसबी एंड उसका एसएसबी निकल गया। उसके पहले व्हाट ही फेस्ड, व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड, दैट मैटर्ड अ लॉट। उससे आंखें खुली, उससे पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाहर से जितना लगता है कि इट इज इजी, इट इज नॉट। अपने एफर्ट्स लगते हैं। एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, अ जॉली पर्सनालिटी पर्सन, है ना। बहुत सीरियस फॉर जब काम की बात आती है, देन ही इज सीरियस। एंड जब मजे करने की बात आती है तो मजे करने में भी सबसे आगे, और ऐसा ही होना चाहिए। एंड जनरली आर्मी ब्रेड्स आर लाइक दैट। हम ऐसे ही रहते हैं ज्यादातर, है ना। तो was very good of knowing everything about Gotham and from Gotham of the SSB. वन थिंग यू शुड डू कि ना, यू शुड कीप योर माइंड एक्टिव एवरी टाइम। हुआ क्या था ड्यूरिंग स्नेक रेस इन भोपाल, जैसे ही स्नेक रेस खत्म होता है तो जीटीओ देखता है कि किसने क्या क्या गलती की। तो वो बोल ही रहा था कि जेंटलमैन, मेनी ऑफ यू हैव done many mistakes while doing the task. So one of your group members will uh, go and have a circle from the second task and come back. Who it will be? उसने बस इतना बोला ही था। अब वो सब प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे को पता है कि वो क्या बोलने वाला है। मैं बोला सर, मैंने सीधा हाथ खड़ा किया, सर आई विल गो, और मैं दौड़ गया। मैं रुका नहीं, मैं हाँ। उसका कंफर्मेशन के लिए नहीं रुका कि अच्छा। यू यस यू कैन गो वगैरह। मैं बस हाथ खड़ा किया, सर आई एम गोइंग, और मैं दौड़ गया, क्योंकि मेरे को पता है उसने क्या बोला। एंड उसे फिर उसने मेरे को रोका और बोला नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, होल ग्रुप विल गो इन। सो आई शोड एन इनिशिएटिव, आई शोड दैट यस आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर माई ग्रुप। तो जितने में वो, अब उनकी गलती ये नहीं है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने मैंने उनसे पहले समझ ली, क्योंकि मैंने आई प्रिटेंडेड कि हाँ आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट ही इज आस्किंग, आई वाज एबल टू ग्रेस्प इट अर्लियर। वो भी जाते तो ऑलमोस्ट उन 10 में से भी 5-6 तो बोलते हैं कि यस सर आई विल डू इट, आई विल डू इट।
बट मैं थोड़ा ज्यादा ही तेज निकला, मैं कि सर मैं करके आता हूँ, मैं और मैं दौड़ गया पीछा मुंह करके, मैंने देखा तक नहीं जीटीओ को। तो बोलता नहीं 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 वेट, चिल्ला के बोलता, फिर पूरे ग्रुप दौड़ के आए। सो दीज आर थिंग्स विच यू नो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इफ यू आर मेंटली एक्टिव, 100% मेंटली देयर। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी गौतम। एंड माफिया तो इज एसएसबी ब्रांडेड गेम, हर किसी या को खेलना चाहिए। वी विल नॉट टेल यू अबाउट इट क्योंकि ये इट इज समथिंग दैट यू शुड एक्सप्लोर व्हाइल यू गो टू एसएसबी। तो इट इज वेरी नाइस गेम। एंड हाँ, स्नेक रेस का आई वुड से दैट इट इवेंचुअली हैपेंस। जरूरी नहीं कि सिर्फ गौतम के टाइम पे उसके ग्रुप में ये चीज बोली हो। आई हैव सीन इन माई एस एस बीज एज वेल जीटीओ डू दिस। वो आपको बोलेंगे कि यू हैव ब्रोकन अ रूल एंड समवन फ्रॉम द ग्रुप हैज टू गो। इवन या तो ये या तो कुछ ना कुछ चीज बोलेंगे। या तो यस, यू हैव टू बी मेंटली अवेयर देयर एट दैट टाइम। एंड ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली शायद उस केस में होती है जब या तो जीटीए को लगता है दैट द ग्रुप इज नॉट फ्रेंडली, लोग फ्रेंडली नहीं है, तब उसको टेस्ट कुछ करना हो, या इंडिविजुअलिटी किसी एक कैंडिडेट की चेक करनी हो। तो यस, मेंटली अवेयर होना बहुत जरूरी है। एंड ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें बताते हैं, गौर करवाते हैं उन चीजों पे जिनको हम डिस्प्लेस कर देते हैं या जिन पे हम गौर नहीं करते, छोटी छोटी चीजें। और एसएसबी में हर एक चीज चीज का एक पर्पस है, उसके पीछे ही वो डिजाइन करी गई है। एंड दैट इज द मेन थिंग। सो इट वाज ऑल अबाउट गौतम स्टोरी, recommendation story, and he really had a wonderful journey, and he is really doing a great work. Do join his initiative of getting his views and his guidance. And I will put up the link in the description as well. Do check it out. And thank you so much, Gautam, for joining our podcast, for accepting our invitation. And literally, मेरे को पता ही नहीं लगा है टाइम का, how it went out. I was on the listening mode, and I really enjoyed the podcast, and I'm sure that viewers are also going to enjoy it. And very best wishes to you from the team Antipak for your futures. And we hope that we will see you ahead as well in one of our podcasts uh, while you are joining the academy or while you are doing something else. So thank you so much, Gautam. Thank you so much for joining us. Guys, if you have liked the video, do like it, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you so much. Jai Hind.